I tell you the dismissal rate is 95% of the total cases. Before filing a case in Supreme Court, first of all must be assuring himself that really this is a case worth filing in Supreme Court. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो केस है दैट डजंट डिजर्व टू बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, तो आपको ये कह देना चाहिए अपने क्लाइंट से कि तुम्हारे केस में कुछ है नहीं भाई। लेकिन उस मिसकैरेज को कौन देखेगा? उसको तो वो तो खत्म हो गया वहां पे कन्विक्ट होने के बाद। ना तो सुप्रीम कोर्ट एविडेंस ले सकता है, ना हाई कोर्ट एविडेंस ले सकता है। इसका मतलब किसने मिसहैंडल किया है? लॉयर ने मिसहैंडल किया है। कि हमको जेलों में जाके बहुत सारे लोग ऐसे, जो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे 10, 15, 20%, 10% होंगे, या हो सकता है मेरा डाटा गलत हो, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पूछेंगे साहब ये बेल क्या होती है। The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या बख्शी और आप देख रहे हैं द न्यू इंडियंस। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल लिव पिटीशन एंड कोर्ट रूम आर्गुमेंट पे। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देश की एक जानी मानी हस्ती, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिस्टर रविंद्र कुमार रायजादा। तो प्लीज वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माय प्लेजर ऐश्वर्या। सर, स्पेशल लीव पिटीशन पे बात करते हैं, तो सर स्पेशल लीव पिटीशन के की कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए कि अगर वो एज अ यंग लॉयर कोई एसएलपी फाइल करा तो वो डिसमिस ना हो पहले? देखो, आप एक बात आपको बता दें कि जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फाइल होता है। ये लास्ट कोर्ट है। अगर आप ये समझ के चल रहे हैं कि हमारी डिसमिस ना हो, तो इसका कोई मैजिक है ही नहीं, नंबर 1। लेकिन ये है कि पहले तो ये समझने वाली बात है कि जो एसएलपी है इट्स एन अपीलेट जुरिडिक्शन अंडर द extraordinary and you say that is jurisdiction which has been vested in Supreme Court. In fact, it is to settle the law. If there is a confusion, there is a contradiction, there is no law on the point. So therefore, it's an extraordinary jurisdiction in the sense that is absolutely discretionary for the Supreme Court whether to entertain an SLP or not. So special leave petition, why I am saying appellate jurisdiction, if SLP is admitted or entertained to be heard on merit, then most of the time, almost every time, they convert that special leave petition into civil appeal or criminal appeal. So therefore, once it is converted into civil appeal or criminal appeal, then they start hearing the matter and nitty-gritty of the matter even. And I tell you the dismissal rate is 95% of the total cases. That's what I'm asking. Why? That is why I'm saying that it's extraordinary, for the reason that, you know, the SLP, when I say appellate jurisdiction, therefore it is coming from lower courts. So either it is coming from the High Court in its original jurisdiction. High Court ने कोई original jurisdiction में under Article 226 कोई रिट पिटीशन एडमिट किया, उसको तय किया, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन से आएगा। लेकिन कभी जब लोअर कोर्ट से आ रहा है, जैसे क्रिमिनल में आ रहा है, क्रिमिनल ट्रायल होके आ रहा है, सिविल सूट्स हो रहा है आ रहे हैं, तो सिविल सूट्स जो हैं अगर आएंगे तो सिविल अपील्स डिस्ट्रिक्ट जजेस के यहाँ हैं, लेकिन अगर उसकी हाई कोर्ट्स भी हैं, हाई कोर्ट्स में अपीलेट जुरिडिक्शंस भी हैं, सेकंड अपील जुरिडिक्शंस हैं, तो रिट जुरिडिक्शन, सेवन अपील जुरिडिक्शंस अंडर आर्टिकल 227 रिविजनल जुरिडिक्शंस, तो ये सब लोअर कोर्ट से आ रहा है। तो it is already filtered at different level. So once it is filtered at different level, then there is an assumption that a person has availed or exhausted enough remedies. Sufficient remedies have been available. It has been made available to him. So the person, there has to be a limit when he should say that, he should feel that I had no case. Now I should not go. But because it's an Supreme Court and its
law is laid down by this court to be followed by every court in the country, or tribunal in the country, or administrative authority for that matter, then there is a need of Supreme Court. So that what is to be decided by Supreme Court, that if there is really manifest error of law, you had your case in High Court, you fought your case in lower court, and the Supreme Court feels that this is the case where really a manifest error of law or glaring error has been committed. So then only the Supreme Court Supreme Court intervenes. So therefore, this class of cases, really 5% people may be feeling aggrieved in every case. Every case a person is losing in High Court or here or in any court, he will always be feeling, he will never be a satisfied person that I had no case. So therefore the cases are coming up to Supreme Court feeling that there is one more opportunity to hit and try. And that is the reason the number of SLPs have increased manifold, and frivolous SLPs are being filed. Or even if there are, and if there is already is pressure on Supreme Court. Or if there is a matter of public interest sometimes. No, public interest matters are always hard. Prima facie, they hear all those matters. Whenever the SLP is filed or writ petitions under Article 32 is filed, then they try to hear the matter, what is the merit of the case, and if they feel really that, because by prima facie, they can come to know that really this matter deserves to be noticed or not, notices are to be issued or not, or this is to be summarily discussed. Because they always say when dismissed at the threshold, we do not feel inclined to interfere in this matter under Article 136 of the Constitution. It does not mean that they approve the judgment or disapprove the judgment. So do you think there is a need to limit the scope of Article 136? It's already amendment there. So the people do not understand that because that's what I am responding to you, that what is the way that SLPs are not dismissed. No, SLPs are dismissed because somewhere they have to check. Otherwise, if it is an appellate court in a normal way, in the entire country, lakhs of cases are coming, and the lakhs of cases are will be filed there, and they will be hearing, and it will be another High Court or another civil court. तो सर किस मैटर्स में एसएलपी को बाकी दूसरे मैटर्स से प्रायोरिटाइज किया जाता है कोर्ट? That is what I am trying to say. There is a miscarriage of justice, or they feel that this miscarriage is of such a nature that they need to intervene and they need to settle the law. They need to say something on that. So therefore, these I am saying extraordinary situations, or that under Article 226. There is an extraordinary jurisdiction, and High Court intervenes directly also in some of the matters. In appellate matters, the regional jurisdictions, they hear so matter. But under Article 226, they say that they have to intervene in emergent situation, in extraordinary situation. So they bypass all remedies of civil court, etc. They entertain the case immediately. There is a violation of statutory rule. There is a violation of statutory provision. There is a violation of fundamental rights. So then they intervene immediately. So therefore, because High Courts are equipped enough to decide those cases with finality. So therefore, coming to the Supreme Court has to pick and choose. Okay. Otherwise, the docket of the Supreme Court is already very heavy. Docket तो floodgate है. इस समय Supreme Court बहुत आ रहा है, और इतना Supreme Court में केस फाइल हो रहा है, और 60 cases, 60 cases, 50 cases. There are 15 benches, and 15 on an average. 15, sometimes 14, sometimes 16, sometimes you will see 16 benches. But what happens? Multiply by 50 in each bench. So 50, so how many cases? 750 cases per day. Supreme Court has to take care.
And even if notices are issued, those cases are coming after notice matters are. Therefore, I'm trying to tell you that a lawyer, before filing a case in Supreme Court, first of all must be assuring himself that really this is a case worth filing in Supreme Court. I had already judgments in my case, but the basic problem is how to tell the client. दैट्स द रीजन ना, आप अगर क्लाइंट चाहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल करो तो ये तो एक मजबूरी भी है. नो, ये मजबूरी नहीं है. ये मजबूरी नहीं है. ये प्रॉब्लम क्लाइंट का जो लास्ट रिजोर्ट कोर्ट आना चाहता है. अगर आपको लगता है, देखिए एक बात बताएं, टू बिगिन विद द लॉयर के बारे में, मैं एडवोकेट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आ जाए केस और हमको कूड़ा करकट दाखिल कर देना है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट अप्रोच इटसेल्फ इज ए वेरी फैटल टू द बेसिक्स ऑफ सिस्टम. प्रॉब्लम इज कि इतना ज़्यादा केस जो फाइल हो रहा है, इसको अगर आप बहुत सरसरी देखेंगे, प्राइमा फेसी देखेंगे या इसको स्क्रूटनाइज करेंगे तो आपका लगेगा कि 30, 45, 50% केसेस तो वो उनके अंदर कोई वर्थ ही नहीं है, उनको फाइल ही नहीं होना चाहिए था. लेकिन लॉयर्स की प्रॉब्लम उनके पास आ गया है. तो अगर लॉयर को ये प्रॉब्लम है, ये हाई कोर्ट लेवल पे तो चांस होता है कि यू टेक ए चांस, यू इन अंडर आर्टिकल 227 आपके पास परवर्सिटी है, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है या एब्सेंस ऑफ एविडेंस है. ये तीनों ग्राउंड जो 226 की या 227 की हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी अवेलेबल है. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो केस है दैट डजंट डिजर्व टू बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, तो आपको ये कह देना चाहिए अपने क्लाइंट से कि तुम्हारे केस में कुछ है नहीं भाई. लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और ऐसा लॉयर्स क्यों नहीं कहते हैं? ये इसलिए नहीं कहते हैं, वो इनसिक्योरिटी के सेंस में सफ़र करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी? फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी. ओके. अगर उनको ऐसा लगता है, देखिए इतना नंबर भी लॉयर्स का बढ़ गया है और इसी वजह से अगर आपका केस, देखिए द क्वेश्चन इज यू लूज द केस एंड सर्वाइव. दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ए लॉयर, कि आपका सर्वाइव कैसे करेंगे आप लूज करने के बाद. अगर मैं एक एडवोकेट इन जनरल की बात करूं आपसे, तो उसका केस अगर हार गया तो कोर्ट में, अगर आज की डेट में तो ऑनलाइन भी सिस्टम है, सब देख लेते हैं कि उनके वकील क्या कर रहे हैं, तो उसको क्लाइंट को अगर ये समझ में आ जाए कि भाई माई एडवोकेट मुझे पहले ही बोल चुका था कि आपका केस में कुछ नहीं है, बट माई एडवोकेट प्रेजेंटेड हिज केस सो नाइसली, ऑलराइट, डिसमिसल हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बढ़िया रहा, लेकिन मेरे वकील बहुत अच्छा किया है. सो द लॉयर्स लॉ एन एडवोकेट सर्वाइव द लॉस. लेकिन अगर वो कह दे आपका केस बहुत अच्छा है और उसके बाद दाखिल करे, तो डिसर्टनिंग है उसके क्लाइंट के लिए भी, और उसको कोर्ट में जो सिचुएशन होगी, जो उसके लिए होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस उससे कहेंगे कि कितना फ्रिवलस केस फाइल किए हो हैं. कोर्ट में कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो जाता है, वो कह देते हैं कि हम कॉस्ट इम्पोज करेंगे. तो ऐसी सिचुएशन में लॉयर तो बहुत सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर में चला जाएगा, उसकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. इसका मतलब उसकी आई टेल यू वन थिंग, वंस यू आर आर्गुइंग इन द सुप्रीम कोर्ट substantial question of law, you ask me what are the ground, they take up the matter, decides to decide the case. If the Supreme Court decides to decide the case, then the prime requirement is, the core requirement of the SLP is that it should be a substantial question of law. पहले तो नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ करता था कि एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विच सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू डिसाइड सो दैट द एंटायर इट शुड बी अप्लाइड इन द एंटायर कंट्री, बिकॉज द लॉ इज नॉट डिसाइडेड टिल डेट एटसेट्रा. लेकिन क्वेश्चन यही है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर है तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि मैं ये नहीं लूंगा. वो कहेगा इवन इफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इज not correct. I'm telling you, sometimes they say, no, it's a small matter, or it doesn't require our interference, let the file be consigned to record.
No, but if the SLP is getting dismissed, then it's already an acceptance of the High Court judgment, no? No, not that's what I'm trying to say. They are not accepting, they are not approving the judgment of the Supreme Court. A dismissal of an SLP is not an approval of the judgment of the Supreme Court, High Court. It simply says we don't want to interfere. Then what will be the next step? Next step is nothing. If you feel that you had really had a very big case or good case, then you can file a review petition, you can file a curative petition, and you can pursue the remedy in the Supreme Court itself. But those are the remedies really you deserve to avail that. Your case deserves that treatment or that processing, that you will file a review in the same court telling the same judges that your judgment is you have dismissed it, your dismissal is wrong. And then in curative petitions, when the curative jurisdiction, Supreme Court requires a certificate of a senior advocate that really, because that curative is heard by 5 judges by circulation. They read the brief in the Supreme in the chambers and then they decide it. So therefore, it's not joke, or it's not so casual that you can always file a curative petition in Supreme Court. Now my case should be heard by 5 judges. No, the Supreme Court, there is a senior advocate certificate that look here, there is a miscarriage of justice, and I'm certifying this case as a senior advocate that this case should be heard by 5 judges. It's such an important, you are seeking indulgence of 5 judges. So therefore, a certificate by senior advocate, a senior advocate must also disclose really such a thing that 5 judges may feel. They may dismiss or they may allow. They may not. Again, curative may be dismissed summarily by circulation. But at least it is the onerous responsibility on a senior advocate as a lawyer that he should be telling the Supreme Court, he should be writing, making his submission in writing, sir, this case deserves to be heard by 5 judges and the 2 judges judgment is wrong, or 3 judges judgment. That's what I'm trying to tell you is that Supreme Court is the last court and people should come over here only उनको जब लगे कि अब या तो उनको they really have a case, otherwise you are flooding the docket of the court. That's why the petitions are getting dismissed. That's why it's 95% of the So what about the writ petition? Writ petition भी तो dismiss करें? Writ petitions are under Article 32 जी. are entertained by Supreme Court. But Supreme Court भी आधे टाइम यही बोलता है कि आप इस चीज के लिए हाई कोर्ट जाइए. That's what I'm trying to tell you. Actually, you need to understand the difference between Article 32 and 226 of the Constitution of India. When you are under 32, you are for the violation of the fundamental right. Right. And if under Article 226, same remedy is available. Same remedy. 226 is entertained not only for violation of fundamental rights, but for violation of statutory rights of a citizen also, of person. So therefore, when the efficacious remedy is already available in High Court, why you people are coming all along from the nooks and corners of the country to the Supreme Court to file a petition under 32? And in the last court, try your hands at High Court if you really have a case and get your matter decided at High Court. And if you are getting the relief, fine. Otherwise, come to the Supreme Court in SLP jurisdiction. And after that, the SLP can get dismissed also, no? No, but if the High Court decides correctly, what is the wisdom to come to the Supreme Court? क्या wisdom कहाँ है Supreme Court आने का? आपको प्रॉब्लम ये है कि हम litigant by nature हैं, और अगर हम litigant by nature हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि let us take a chance everywhere it is available. And that's the reason that all courts are full of their hands. और लोअर कोर्ट में बहुत प्रेशर है, हाई कोर्ट में बहुत प्रेशर है, लेकिन लॉयर्स कम्युनिटी एज सच वो इतना नंबर है लोअर कोर्ट्स में, और इसीलिए मैंने कहा कि जो लॉयर्स हैं उनके लिए बहुत मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिमिनल अपील्स जो स्पेशली पिटिशन क्रिमिनल्स आते हैं, क्रिमिनल के आते हैं, मैंने जब काम किया है वो
तो वहां पर ये पता चलता है actually it is the evidence which is produced in the lower court, which is ultimately comes to Supreme Court, says whether there is an evidence or not, whether there is a perversity or not. वहां पर मिसहैंडल अगर हो गया तो फिर उसका क्योर नहीं होता, आई टेल यू। और इसीलिए इक्वली इक्विप्ड लोग हमें, स्किल्ड लोग की जरूरत होती है हमें लोअर कोर्ट्स में। ओके। और अगर हमने लोअर कोर्ट्स में उसको मिसहैंडल कर दिया, मैंने देखा है बहुत खराब हो जाता है, और उसमें लोगों को, बहुत लोगों को कन्विक्शंस हो जाते हैं मिसहैंडलिंग की वजह से, कन्विक्शंस हो जाते हैं। वहाँ जो लोग इनोसेंट होते हैं, देख के फाइल देख के लगता है ये तो कन्विक्शन, ये क्वेश्चन जो है पूछे जाने चाहिए थे, ये क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए था, और ये नहीं हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन में तो ये हो गया कि हाँ ये तो मिसकैरेज हो गया, लेकिन उस मिसकैरेज को कौन देखेगा? उसको तो वो तो खत्म हो गया वहां पे कन्विक्ट होने के बाद। ना तो सुप्रीम कोर्ट एविडेंस ले सकता है, ना हाई कोर्ट एविडेंस ले सकता है। इसका मतलब किसने मिसहैंडल किया है? लॉयर ने मिसहैंडल किया है। So, ऐसे तो आधे इंडिया में आधे से ज्यादा लोग तो कन्विक्ट होने के पहले ट्रायल सेशन में ही बहुत सी पनिशमेंट काट लिए होते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम्स में ही देख लीजिए। देखिए प्रॉब्लम ये है, वो बेल सिस्टम की बात कर रहे हैं आप। जो कंट्री में जो इकोनॉमिक्स है, जो कंट्री में जो जिनकी आप एक्यूज की बात कर रहे हैं, आप अगर इसको देखें कि वो जेलों में रहते हैं इतने दिनों, जेलों में रहने की बात है कि बहुत से लोग तो बेल पिटीशंस, जो बेल हो जाएगी उनकी, वो चाहे इकोनॉमिक रीजंस हो उनके, या उनका सोशल रीज़न हो कि उनके घर में कोई नहीं है, या उनके कोई फ्रेंड नहीं है जो उनकी केयर करें, बहुत से तो बिना बेल के जेलों में पड़े रहते हैं। बेल, उनकी पिटीशन कभी सुप्रीम कोर्ट आती, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जाती ही नहीं है। वंस दे आर अरेस्टेड बाय पुलिस, दे लैंग्विश इन जेल। So what is the point of then bail is a what was that? Bail is a Rule. and jail is an exception. What No, is the point question of that, is then? that judge is to be informed that, sir, I have been arrested. Please release me on bail. So somebody has, that's why application I am telling you. कोई व्यक्ति जब तक कि किसी कोर्ट में जाएगा नहीं, या तो आप कहिए कि हमारे यहाँ जो लीगल एड सिस्टम है उसको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि कितने लोग जेलों में बंद हैं, क्या जेलों में होता है, ये ऐसा नहीं है हो नहीं रहा है। जब जेलों में इंटरेक्शन कर रहे हैं लोग, इवन द जजेस जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट देखने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी गए हैं। लेकिन देखिए ये जिम्मेदारी तो वो है जो अवेकेंड लॉयर है की है। जो लॉयर है उसको ये समझ में आना चाहिए, उसको काम की भी तलाश रहती है, तो उसको हमेशा अगर वो देखता रहे कि जब तक मैं बैठा हुआ हूँ कचहरी में और मुझको पैसा नहीं मिल रहा है, मैं तब तक जो है वो कहीं यहाँ से उठ के नहीं जाऊँगा, मुझे पास लोग आने चाहिए, नहीं। आज भी इस देश में ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों को उनसे जाके कहना है कि तुम्हारे क्या राइट्स हैं। ये बेल क्या है, राइट की बात कर रहे हैं हम। तो उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो उनका जो राइट टू लाइफ है, जिसका इंग्रेडिएंट है बेल, तो उनको तो कोई जाके बताएगा ना कि तुमको बेल हो जाए। ये तो अवेयरनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है, अवेयरनेस ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन की है। तो आप जो ये बात कह रहे हो कि लोग ऐसे करते हैं और जेल में बहुत दिनों पड़े रहते हैं, जेलों में बहुत दिनों पड़े, एक तो ग्राउंड ये हो गया कि उनकी बेल ही नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं आता है, लोअर कोर्ट नहीं जाता, कहीं जाती ही नहीं है बेल, वो जेलों में लैंग्वेज करते रहते हैं। गरीब लोग हैं वो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ऐसे गरीब लोगों के लिए लीगल एड भी तो एक, बट ये तभी तो मैंने कहा ये लीगल एड क्या है, ये मूवमेंट है या इंस्टीट्यूशनल है? ये मूवमेंट होना चाहिए लीगल एड। और लीगल एड सोसाइटी, जो लीगल एड जो सुप्रीम कोर्ट का विंग भी है, गवर्नमेंट ने भी बना रखा है विंग, लेकिन इसको अवेल करने के लिए जितने भी लोग उसके इम्पैनल्ड होते हैं, वो उनके अलावा ये तो किसी भी, कोई भी आदमी, अगर आपका जिस शहर में है, आप जरा देखिए जिस शहर में जैसे रहते हैं लोग, और शहर में रहते हैं जैसे, तो वहाँ जेलें हैं। कोई, आपने कभी ये देखा है कि वकीलों को कि वो जेल घूमने जाएं, कि जेल में देखने जाएंगे वहाँ क्या चल रहा है? कभी नहीं। होना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि हमको जेलों में जाके, बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, 10, 15, 20%, 10% होंगे, या हो सकता है मेरा डाटा गलत हो, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पूछेंगे साहब ये बेल क्या होती है। उनको पता ही नहीं है। अगर उनके पास जो है वो थोड़ा सा नॉन बेलेबल ऑफेंस में उनका अगर लग गया है, तो मालूम पड़ेगा उनको पता ही नहीं चलेगा
कि वो मेरी बेल भी हो सकती है, वो तो सोचता है मैं सजा काट लूंगा बस। उसको यही नहीं पता कि सजा कैसे कटेगी। जेलों में जाके उसको वकील नहीं मिलता। अब तो लीगल एड, अब तो क्रिमिनल में कर दिया है कि अमाइकस अपॉइंट कर देते हैं वो। अब तो सब जगह आप प्रोसीड नहीं कर पाता है। लेकिन ये स्टेट एड जितनी भी है, लॉयर्स जो हैं जिनके पास, खासतौर से मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या जो लोग ब्रीफलेस हैं, जो ब्रीफलेस हैं और पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो वहाँ पर ये देखें कि वो कैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर जो एक्टिविटीज़ जो चाहते हैं वो कैसे पब्लिक इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ जो है उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। वो जब तक अपने को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अब हम ही लोग हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा कि बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस है, लोग पैसे नहीं लेते हैं, प्रो बोनो करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये ड्यूटी होती है उनका। और उनको ये लगता है कि ये केस अगर हमारे पास आया, ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, हमको इसको करना है। Forget about the fame it generates or whatever, but it is a onerous responsibility also as a citizen who is a lawyer. तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इसको देखेंगी कि मैंने कहा ना एसएलपी तो कोई रेडीमेड सॉल्यूशन ही नहीं है, वो तो नीचे से आ रहा है। यहाँ तो लोगों के पास अपील जुडिक्शन और लोअर कोर्ट के जो केसेस हैं, जो वो उन्हीं को हैंडल करने के लिए आदमी ने, सिविल के तो छोड़ दीजिए, सिविल तो आदमी जब केस करेगा तो करेगा ही, लेकिन जहाँ तक उनके जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है इस देश का, वो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो रियली ये डिमांड करती है कि उन सारे लोगों को जस्टिस कैसे मिले। और ऐसी सिचुएशन में जो लॉयर्स के लिए तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल होते हैं जो अमाइकस के थ्रू, लीगल एड के थ्रू फाइल हो जाते हैं और 8-8, 10-10 साल बाद फाइल होते हैं। जिस दिन उनका हाई कोर्ट से कन्विक्शन हो जाता है, कैन यू बिलीव कि वो 8 साल के बाद एसएलपी फाइल हो रही। कोई गया, बोले भाई तुम ये कितने साल हो गए? साहब मैं 8 साल हो गए, 10 साल हो गए। बोले क्या हुआ? बोले हाई कोर्ट में साहब मेरी तो कोई केस ही नहीं, मेरा केस ही करा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, शायद मुझे राय मिले। तो वो आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो जेल में रहते हैं 6, 7, 8 साल, 10 साल, 12 साल, जितने भी साल, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया तो उसकी डिले के ग्राउंड पे कभी रिजेक्ट नहीं होगी केस। कभी नहीं होगी डिले कंडोन। एसएलपी डिसमिस वो अलग बात है, लेकिन डिले पे नहीं, डिले कंडोन नहीं, कभी ऐसा रिफ्यूज नहीं होगा। आज तक किसी का, ए पर्सन इन जेल का एक आप केस नहीं बता सकते मुझको जिसमें वो कहना भी नहीं पड़ता है उनको कि साहब ये जेल अपील है। हाँ ठीक है, अगर हीनियस क्राइम हो फिर भी कोई सा क्वेश्चन ये है कि हीनियस क्राइम की मेरिट पे देखा जाएगा, उसमें डिले कहाँ से ग्राउंड है? डिले क्यों है उसमें, ग्राउंड कैसे हो सकता है? वो मेरिट पे अगर वो डिसमिस हो गया, लेकिन वो एज ए कन्विक्ट भी अगर है और उसको जस्टिस इतना तो मिलना ही चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में से कि भाई या हाई कोर्ट में से, फॉर दैट मैटर फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में होता है। क्रिमिनल अपील जो मर्डर की हैं या हेनियस क्राइम्स की जो होती है, सो हाई कोर्ट भी कह सकता है कि भाई डिले हो गया, अपील में इतना, अरे 8 साल से जेल में है, वो कुछ कर ही नहीं पाया है, अब आप आके रहो डिले पे रिजेक्ट कर दे, क्या चल के आता है यहाँ पे? जो आदमी जेल में है तो क्या वो डिले कंडोन और वो अपील सुन लेते हैं। हाई कोर्ट में तो फर्स्ट अपील जो क्रिमिनल अपील्स है वो रिकॉर्ड मंगा के थर्ड वेयर सुना जाता है, पूरा अपील सुना जाता है। तो वो तो बिल्कुल ट्रायल कोर्ट की तरह चलता है, जहाँ फर्स्ट अपील जुरिडिक्शन है इस देश में जितने भी हैं, चाहे वो सिविल अपील्स हो चाहे वो क्रिमिनल अपील्स हो, वो बिल्कुल ऐसे सुनी जाती है जैसे ट्रायल कोर्ट सुनता है। वो तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सर आपने भी बताया था जैसे बहुत से क्रिमिनल्स जो जेल में होते हैं जिन्हें बेल, उनकी एप्लीकेशन बनी भी नहीं होती, तो क्या आपने बोला वकीलों को जाके वहां विजिट करना चाहिए? यस, कर लेना चाहिए। और ऐसा पॉसिबल है? हाँ क्यों नहीं, कह सकता है, सीजीएम का कह सकता है कि सब डाटा ले सकता है, ऑनलाइन डाटा बहुत होता है। ऐसे कभी कोई क्रिमिनल मैटर्स में सर आपको भी एक ख्याल आया कि कभी आपको जाना चाहिए? मुझे मेरी तो जर्नी डिफरेंट, मेरी सिविल से जर्नी शुरू हुई थी और क्रिमिनल मैं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आके और हाई कोर्ट में आके, क्योंकि मैं ऑलरेडी हाई कोर्ट में चूंकि काम कर रहा था, मैं जेल नहीं गया कभी, लेकिन मैं जब जेल से जितनी भी क्रिमिनल अपील्स आई वो मैंने सब की हैं। देखिए एक जर्नी अलग अलग होता है। जिस समय मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था 84 में, उस समय क्राइम, अब तो वाइट कॉलर क्राइम्स भी इतना है, इतना डॉकेट नहीं था, इतना हैवी डॉकेट नहीं था। और लेकिन मुझे आज भी ध्यान है कि एक बच्चे को पुलिस में रेलवे ने पकड़ लिया था। अच्छा। भीख मांगते हुए रेलवे में, जैसे भीख मांगना बैगर में, उसको पकड़ लिया उस बच्चे को। वो भीख मांग रहा था, बिना टिकट ही रहा होगा, वो पकड़ लिया था। मुझे आज भी ध्यान है कि वो केस मैंने बेल के लिए किया था, लेकिन वो बाद में जुवेनाइल कोर्ट चला गया और उसकी बेल हो गई जो भी बच्चे की।
लेकिन वो अखबार में निकला था। अच्छा। और अखबार में निकलने के बाद हम कुछ दोस्त जो है जाके वहाँ स्टेशन गए, वहाँ पता किया। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये धीरे धीरे आप तो मसरूफ़ हो जाते हैं काम में, लेकिन क्योंकि मेरा तो फील्ड ही क्रिमिनल नहीं रहा था, सिविल ही था शुरू में मेरा फील्ड, जब मैं लोअर कोर्ट्स में काम करता था। और लेकिन बहुत मैंने देखा है क्रिमिनल में जिस तरह की केसेस आते, क्रिमिनल केसेस आते हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास केस आते हैं क्रिमिनल के, जो क्रिमिनल SLPs क्रिमिनल होती हैं, वो तो उनके घर वाले ही आते हैं। और उसमें से मुझे दिखता है आधे से ज़्यादा जो लोग हैं उनके पास तो बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है, ना उनके पास है। और आप उनसे फीस के मामले में जब कुछ कहेंगे तो हो सकता है वो उस फीस के स्ट्रक्चर में केस फाइल ही ना कर पाए। ये एक स्टार्क रियलिटी है। बिल्कुल, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स की फीस के बारे में बात होती है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, मैं तो चूंकि लोअर कोर्ट से आया हूँ, मैंने बहुत देखा ये थोड़ा अलग सुनने को मिला है, लोअर कोर्ट से उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, ये कैसे हुआ? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में मैंने 16 साल काम किया है, 1984 से 2000 जी। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने जीवन में कि मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, विद ऑल फेयरनेस। क्योंकि मेरे दिमाग में कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं बरेली छोड़ के, बरेली में मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, तो बरेली में पढ़ने गया था और वहीं पे मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। और जब मैंने वहाँ प्रैक्टिस शुरू किया तो मैं लेबर कोर्ट्स में काम करता था। मैं पहले ट्रेड यूनियन लॉयर था। ओके। और ट्रेड यूनियन लॉयर कौन से होते हैं? जो फैक्ट्री के मजदूरों के केसेस करते हैं, तो मैंने वो केसेस किए। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया मैंने। तो मैं 16 साल जब लोअर कोर्ट्स में काम कर, मैं लोअर कोर्ट कहूँगा तो गलत होगा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कह सकते हैं आप उसको। और वहाँ मैंने काम किया 16 साल। और बरेली में मेरा काम बहुत अच्छा काम था और शायद छोड़ने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। और जब 2000 में नैनीताल जब उत्तराखंड बना तो बरेली से वो 130 किलोमीटर बैठता है। और 130 किलोमीटर में चल के मैं नैनीताल जाके, मैंने बस अपने कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि रवि, आप, मुझे रवि कहते हैं निकनेम मेरा, कि रवि आप ये कोशिश कर सकते हो। तो मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया। तो हम लोग 3 दिन नैनीताल रहते थे। एक छोटा सा, एक गंगाराम मूलचंदानी साहब थे, हाई कोर्ट जज, रिटायर हुए, उन्होंने अपना मुझे किराए पे एक मकान दे दिया, वो उनकी किश्तें में देने लगा था जी। और वहाँ जाकर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कोई हाई कोर्ट का केस नहीं था और मैंने हाई कोर्ट में वकालत शुरू की सन 2000 में, 3 दिन। ये न्यू कमर के लिए हिम्मत की बात, आसान हो सकता है, लेकिन मैं 16 साल के बाद गया था और ये रिस्क लेके गया था कि मैं बरेली में 3 दिन 4 दिन नहीं रहूँगा तो मेरे क्लाइंट्स चले जाएंगे, और काफ़ी चले भी गए। लेकिन मैंने वहाँ काम शुरू किया, और जब मैंने काम शुरू किया तो एक व्यक्ति, मैं आपको बताता हूँ, एक टीचर था, वो अपना थैले में अपनी फाइल लिए हुए था, जो मुड़ी हुई फाइल थी, और वो मुझे वहाँ मिला और वो वकील ढूंढ रहा था। तो उसने मुझे पकड़ा कि साहब, आप वकील साहब, आप मेरा मुकदमा करेंगे? तो हम तो बहुत पैसे लेते थे, कॉर्पोरेट के वकील थे जी। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो उसने हमसे कहा कि साहब कितनी फीस लेंगे? तो हमने उससे कहा तुम हमारी फीस नहीं दे पाओगे, लेकिन अगर पहली बार तुम आज मेरे पास आए, मेरा पहला मुकदमा है इस हाई कोर्ट का, इसलिए मैं छोड़ने की भी स्थिति में नहीं हूँ। रिस्क था लेकिन दोनों तरफ। नहीं, मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे को ये पैसे मिल रहे हैं और पहले मुकदमे के, और तुम्हारी हालत ये है कि तुम फीस मेरी दे नहीं सकते। तो ऐसा है कि तुम्हें जिसने भेजा है कि कौन, कहाँ से आए हो? बोले मैं काशीपुर से आया हूँ। तो मैंने काशीपुर में ही पूछ लेना मेरे बारे में, वही बता देगा। कोई भी, जिससे भी, जो भी हो, किसी भी कंपनी में जाना और पूछना हमने RK रायजादा साहब को हम करना चाहते हैं, तो वो तुम्हें बता देगा। तो उसने कहा साहब मेरे पास, मैंने क्या दे सकते हो? तो उसने, वो भी सच्चा ही आदमी था। एक्चुअली उत्तराखंड में जो पहाड़ है ना, थोड़ा सरल लोग हैं। तो उसने मुझसे ये कहा कि 2500 रुपये मैं टोटल दूंगा आपको, और मैं आज लाया हूँ 1200 रुपये। और मेरे को पहली फीस उत्तराखंड में 1200 रुपये मिली। और सर उस वक्त आप लेते कितना थे? मैं लेता था 5500 रुपये। तो काफी कम, बिल्कुल आधे से भी कम ये बात होगी। लेकिन मेरे भी सर्वाइवल का प्रश्न था जी। अब ये सर्वाइवल का प्रश्न है, उसके सर्वाइवल का तो यार उसकी नौकरी का मामला है। मेरे सर्वाइवल का प्रश्न ये है कि मैं ये छोड़ दूंगा तो ये गई,
मतलब ये भी नहीं मिले मुझे, एक कैसे मौका मिलेगा हाई कोर्ट में काम करने का, आप जरा सोचिए जी। कि मेरे पास कोई नहीं, और मैं एक हाई कोर्ट में चल, मेरे साथ एक गंगाराम मूलचंद है जिनका नाम मैंने लिया, वो भी घूमने गए थे। तो हम लोग, अगर हमको मुकदमा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं किसी कोई ऐसे वहाँ कोई स्वागत करने थोड़ी बैठा है मेरा कि राजा जी आ रहे हैं उनसे मुकदमा करा लिया जाए। धीरे धीरे करके ही करना है। और पहला केस मिला है, आई कॉल्ड माय फोन। उस समय मोबाइल होता था 16 रुपए मिनट का, वो मेरे पास था, एस्कॉटेल का। तो वो मैंने उसको वाइफ को फोन किया कि तुमसे मैंने कहा था कि भाई कुछ 6 महीने तो तुम्हारा जो है खर्चा तुम्हें मुझे ही देना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो आज के पैसे मिल गए, मैं वापस चला जाऊंगा। 700 रुपये की टैक्सी होती थी उस समय। तो मैं वो बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि लॉयर का स्ट्रगल वहाँ आ गया, फिर 3 दिन वहाँ करता रहा, 4 दिन वहाँ करता रहा, और 2013 में मैं डेजिग्नेट हो गया सीनियर एडवोकेट वहाँ। और जैसे ही वहाँ डेजिग्नेट हुआ तो वहाँ ये 13 साल वहाँ काम किया था, और काम बहुत अच्छा था वहाँ। और लोगों को लगता था कि अब सीनियर हैं तो यही माना जाता है कि ठीक ही है सब। वहाँ पर जो है फिर मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि अब बरेली भी छोड़ देते हैं, अब ये तय करो कहाँ जाना है, या तो नैनीताल जाएंगे पूरा या जाएंगे, फिर बताओ क्या करना है। तो हम सुप्रीम कोर्ट उस समय 1-2 बार आना शुरू कर दिए थे देखने। शांति भूषण साहब को असिस्ट करने आता था मैं यहाँ, जो शांति भूषण साहब हैं, मुझे अब तो डेथ हो गई उनकी। तो शांति भूषण है, आर्यन त्रिवेदी हैं, राकेश द्विवेदी जी हैं, इनको मैं असिस्ट करता था आके, और रंजीत कुमार जी। अब मैं सीनियर खुद हो गया। तो जब मैं सीनियर खुद हो गया तो अब मुझे खुद भी करना है, अब तो करना ही है। तो मेरी वाइफ से मैंने कहा कि एक रिस्क और लेते हैं, हम छोड़ देते हैं बरेली, और 3 दिन यहाँ रहते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, अब दिल्ली रहेंगे। वहाँ का काम छोड़ दिया बिल्कुल, बरेली काम जितना जो 3 दिन रहता था काम, वो छोड़ दिया। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट छोड़ दिए कॉर्पोरेट के, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ गए, बिल्कुल यहाँ किराए का मकान लिया, और यहाँ पे आके यहाँ शुरू कर दिया 2013 में। और 2013 में जब शुरू किया तो आपको मैंने ये बताया कि जब मैंने यहाँ SLP आर्गू की करनी शुरू करी तो मुझे कोई डिफिकल्टी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं सेकंड अपील जो है वो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ली जाती है हाई कोर्ट में। अगर आपने सेकंड अपील जुरिडिक्शन में काम किया है, सेम चीज सेम क्वेश्चन, अगर आपको जजमेंट स्क्रूटनाइज करना नहीं आता है कि जजमेंट में क्या लीगल इश्यू है जो गलत तय हुआ है, आप फेल्योर हैं, अटर फेल्योर हैं सुप्रीम कोर्ट में। डेट्स एंड इवेंट्स लिखने से कोई काम नहीं चलेगा कि ये फला डेट को केस हुआ, फला डेट को, इससे कुछ नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा बॉडी में, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज अराइजन इन दिस केस as to the high court has committed this mistake, this mistake, this mistake. So question ये है कि ये substantial question of law has arisen in this case, ये question of law ये procedure नहीं है, procedural भी होता है कभी कभी substantial question of law, लेकिन maximum ये substance of law, substratum of law हम बोलते हैं इसको। इसीलिए जो न्यूकमर हैं, जो नीचे ही हैं, हाई कोर्ट में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, अगर आप उनसे एक बात पूछें तो आपको जवाब मिल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप किसी से पूछिए, देखिए साइंस का सब्जेक्ट आप हैं, कभी रही है साइंस का सब्जेक्ट? जी 10वीं तक तो पढ़ी है। राइट। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो साइंस क्या है, यही तो है कि why it happens, it happens। तो जैसे बायोलॉजी में कहा जाता है टेस्ट इज इट हैपन्स। बायोलॉजी में कि हृदय क्यों धड़कता है, आप ये नहीं कह सकते क्यों धड़कता है, बायोलॉजी में क्वेश्चन नहीं है वाई, लेकिन फिजिक्स में है वाई। फिजिक्स एक्सप्लेन्स सर्टेन थिंग्स, केमिस्ट्री डज, केमिस्ट्री में भी हाइपोथेसिस होता है, लेकिन बायोलॉजी में सिर्फ डिस्कवरी हो सकता है। क्यों धड़कता है नहीं, लेकिन कैसे धड़कता है ये तो है, वो दैट्स इट। लेकिन कैसे धड़कता है, धड़कता है, हाँ, ज्यादा धड़केगा कम धड़केगा, लेकिन ये क्यों धड़कता है ये नहीं पता है। तो इश्यू ये है ना, क्यों, वाई का कोई कंसेप्ट नहीं है साइंस में। इसीलिए इसी तरह से लॉ में एक सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ लॉ। और अगर आपने साइंस ऑफ लॉ का अगर कोई स्टूडेंट नहीं बनना चाहता है या साइंस ऑफ लॉ को नहीं समझना चाहता है, जब साइंस ऑफ लॉ आप समझ लेते हैं तो आप चाहे क्रिमिनल केस करिए चाहे सिविल केस कीजिए, ये सिर्फ लॉ है आपके लिए।
आधे से ज्यादा स्टूडेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस से ही भागते हैं, मतलब दैट्स द रीजन। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूं, इंसान झगड़ा क्यों करता है इंक्रोचमेंट के ऊपर। अगर आप देखिए कि इंक्रोचमेंट हुआ है, जिसको आप कहते हैं पदेशन का इंक्रोचमेंट, तो आप ये बताइए कि वो झगड़ा क्यों करता है, उसकी ये आदत क्यों है कि वो दूसरे के लैंड को इंक्रोच कर लेता है। साइंस एक्सप्लेन करती है पदेशन की, पदेशन की थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि पदेशन क्या है, कानून इसको कैसे देखता है, इस पदेशन को, विधि, इसकी साइंस क्या है, पदेशन क्या है, तो क्या है, ए डिजायर टू पजेस क्यों है। जैसे आप कभी कभी कह देते हैं कि बड़ा पजेसिव हो रहा है, तो ये पदेशन क्या है, ये शब्द पदेशन, इसको साइंस ने सोशल फिलॉसफी में कैसे देखा है, इसको पदेशन को रेगुलेट करने की जरूरत क्यों हुई है, उसको, साइंस को, लॉ को। अरे भाड़ में जाइए, पदेशन झगड़ा करिए, कुछ करिए, लेकिन ये पदेशन एक लाइफ का एक इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों है किसी भी आदमी की, तो साइंस ने इसको, लॉ ने इसको समझा, और लॉ ने पदेशन को डिस्क्राइब किया और पदेशन की थ्योरी को पकड़ा। तो जो सबस्ट्रेटम ऑफ, जिसको साइंस ऑफ लॉ आप कह रहे हैं, व्यक्ति क्या है, आपका पर्सन क्या है, आपने कहा आदमी हड़मास का, नहीं, ऐसा तो नहीं है, व्यक्ति तो लीगल पर्सन भी है। तो व्यक्ति क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, पर्सन क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, ये लॉ अगर नहीं समझ में आएगा, अगर आपको साइंस ऑफ लॉ समझ में आती है, आधी से ज्यादा रिडल ऑफ लॉ जो है वो सॉल्व हो जाती है। आपको मैं बताता हूं कि पूरा की पूरा सुप्रीम कोर्ट साइंस ऑफ लॉ को ऑपरेट करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी सिचुएशन में प्रोसीजरली अगर आप कोई लैप्स कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि ये प्रोसीजरल लैप्स से कोई मिसकैरियज ऑफ जस्टिस तो नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये करता है कि इफ ऑल राइट, अगर इसमें कोई एरर, इस प्रोसीजरल लैप्स से कोई बहुत मिसकैरियज नहीं हुआ है, तो होगा, थ्रो कर देगा, इग्नोर कर देगा प्रोसीजरल लैप्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, प्रोसीजर समटाइम्स इज इंपॉर्टेंट। पूरा की पूरा हाई कोर्ट का 226 का जुरिडिक्शन प्रोसीजरल लॉ को चेक करने का, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन, प्रोसीजर डिसीजन मेकिंग चेक होता है। डायरेक्ट जुरिडिक्शन में जितने भी केसेस होते हैं, सब में कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज अपार्ट प्रोसीजर चेक होता है, वेदर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज करेक्ट। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्यों करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ राइट्स इन्वॉल्व हैं जी। और जब राइट्स इन्वॉल्व है, तो राइट्स क्या है, सब्सटेंटिव हैं। राइट्स तो सब्सटेंस होता है उसमें। तो जो सब्सटेंटिव लॉ है, उसको किस प्रोसीजर से आपको ऑपरेट करना है, वो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। लेकिन दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाई कोर्ट एग्जाम इज द प्रोसीजर, क्योंकि उस प्रोसीजर से ही पता चलता है इनके सब्सटेंटिव राइट्स खत्म हुए या नहीं हुए, और उसके बाद फाइनल जजमेंट, परवर्सिटी है या नहीं है, या जो भी है। बट लेकिन अगर प्रोसीजर खराब है, अगर प्रोसीजर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रॉन्ग है, हाई कोर्ट कह देता है डिसीजन कितना भी अच्छा हो बुरा हो, हमसे मतलब नहीं है, ये डिसीजन इज रॉन्ग। इसको हम कभी कभी कहते हैं एंड एंड मीन्स टू एंड। वी वांट एन ऑब्जेक्ट एंड और मीन्स टू अचीव एंड। इनमें से कुछ भी गलती होगी, दोनों में से कुछ भी गलत होगा तो गलत होगा। आप मीन्स भी इलीगल नहीं अडॉप्ट कर सकते किसी लीगल मीन के, लीगल एंड को अचीव करने के लिए। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स कॉमर्स हैं, न्यू कॉमर्स हैं, उनको जुरिस्प्रूडेंस का अगर बहुत अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है आप, नंबर ऑफ केसेस तो बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके पास, और न अगर आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं, मेहनती हों, प्रभु कोई ना कोई गुण देता है किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर लॉ को समझने वाली साइंस का ही क्लू नहीं है, आप उसको साइंस को ही नहीं समझ पाएंगे, तो नॉट नहीं खोल पाएंगे। मुकदमा तो चल जाएगा। जज को भी पता है मुकदमा तो कैसे होना है, वो जज भी ठीक ही है, उनका भी ठीक ही होता है साइंस ऑफ लॉ, तो वो लोग कर लेते हैं, तब वो भी गलत हो जाते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी इशू यही आ रही है कि जुडिशरी में या हाई कोर्ट लेवल पे जो जजेस आते हैं, वहां पर भी इशू है। क्या है सर? सब्सटेंशियल इशू है, बहुत अच्छा कम है,
बहुत मतलब क्वालिटी गिरी है। क्वालिटी एज इन लाइक उनके इंटरप्रिटेशन या फिर हाँ, जजेस की जो क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छी नहीं हो रही है और इसमें डिके हो रहा है। मतलब उनके वर्किंग इस पे बता रहे हैं आप, या फिर जो जजमेंट डिलीवर कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ या फिर जजमेंट्स में इंटरप्रिटेशन लॉ क्वालिटी को ऑफ लेके है। जजमेंट्स में प्रॉब्लम है और क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का डॉकेट बढ़ रहा है। ओके। और इसीलिए मैंने कहा कि जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स क्यों है, क्यों गिर रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं और सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एसएलपी पहले इतना नहीं था। अब शायद अब कुछ पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये जो 5% मैंने आपको बोला, ये परसेंटेज बढ़ा है एडमिशन का। ओके। अब नोटिस ज़्यादा हो रहा है वो, लेकिन जो जिस तरह का मैंने देखा है क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स, मैं अपना सब्जेक्टिविटी है इसमें। बर्डनिंग ऑफ केसेस भी तो एक मैटर कर रहा होगा तो ना? इसीलिए तो बर्डन आ रहा है। नहीं तो हाई कोर्ट में ये इशू है। हाई कोर्ट ने, मैंने कहा बहुत फैक्टर है। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में 250-250 केसेस एक जज एक दिन में कर रहा है। इट्स डैम इम्पॉसिबल। Obviously. और वो इतना सिचुएशन खराब है कि उतना टाइम भी नहीं मिल रहा है, ना सुनने का टाइम मिल रहा है, ना डिसाइड करने का टाइम उतना मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि वहां पर हालत उस हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट में उतना खराब स्थिति नहीं है जी। उतना ज़्यादा पेंडेंसी है, उतना नहीं है। लेकिन मैं तो हाई कोर्ट में बता सकता हूँ आपको, इलाहाबाद की बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत दिल्ली हाई कोर्ट का बता सकता हूँ कि जहाँ बैकलॉग बहुत है, जहाँ पेंडेंसी बहुत हो रही है। लेकिन जजेस अच्छे हैं जो सुनते भी, बहुत सारे ज़्यादातर जजेस अच्छे ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि क्वालिटी, जब सोसाइटी में थोड़ा क्वालिटी में गिर रहा है तो वहीं से तो सब लोग इधर उधर आ रहा है। तो वो मुझे लगता है कि उसमें लॉट टू बी डिजायर्ड। और जब अब कुछ बच्चे जो हैं, चूँकि लॉ में अब अच्छे, पहले 84 में मैं लॉ किया था मैंने, तो मैं आपको ये बताऊं कि उस समय लॉ प्रिफर्ड सब्जेक्ट नहीं था लोगों का, बिल्कुल नहीं था। लॉ में लोग आते नहीं थे ज़्यादा, और वही लोग आते थे जिनका कुछ नहीं होता था कहीं, वो सब लॉ में आ जाते थे। बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। और मैं जब लॉ में आया तो मुझसे लोगों ने कहा कि तुम क्यों आ गए। मैं पढ़ने में ठीक था, मैं थ्रूआउट आई फर्स्ट सबने क्लास साइंस एक्सपेक्ट किया होगा आपसे उस वक्त। हाँ, मैं मेरे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में मेरी फर्स्ट क्लास थी। इंटरमीडिएट बीएससी में सेकंड था। लेकिन लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं लॉ कर लूंगा ज्वाइन। एंड लॉ, आई ज्वाइन लॉ एज एन ऑप्शन, नॉट एज ए लास्ट रिजॉर्ट। ओके। नो, इट वाज नॉट। और इसीलिए जब उस समय नहीं आते थे लोग, अब तो लोग बहुत आ रहे हैं। लॉ स्कूल्स जब से आ गए, उनमें क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड भी, क्वालिटी का जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रहा है लॉ स्कूल्स में। और प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कंपटीशन का, वेरी कम्पिटिटिव नाउ। तो जो लॉ जो लोग भी कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों से कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों से कर रहे हैं या जहाँ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने मरे से ही स्वर्ग मिलेगा जी। आप खुद ही स्टडी करेंगे तभी बेड़ा पार होगा। स्पून फीडिंग करके कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको आज नहीं, मैं 2-4 साल आपको समझाता रहूं, वकालत के गुर सिखाता रहूं, ऐसा कुछ नहीं। तो सर कुछ कोर्टरूम आर्गुमेंट पे भी एडवाइस कर दीजिए, जो वकील सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं, यंग लॉयर्स, उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आपको पहले तो थ्रेशोल्ड आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का क्रॉस करना होगा। अच्छा। और एडवोकेट अगर एज अ सीनियर एडवोकेट वो एज अ जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करता है, जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करेंगे तो हमेशा, अगर मान लीजिए सपोज वो एओआर नहीं हो पाए तो फिर वो हैंड ओवर तो एओआर को ही करेंगे केस। सुप्रीम कोर्ट में तो मैकेनिज्म ही नहीं है। तो जहां तक मेरी तो एडवाइस यही होती है कि उन लोगों को हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में भी काम करते हैं, उनको हाई कोर्ट बहुत रेगुलर जाना चाहिए। ओके। रेगुलर नहीं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आप हाई कोर्ट को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट आने का ऑप्शन न्यू कमर के लिए एक बेटर और एप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। और जहां तक सवाल है हाई कोर्ट में, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है हाई कोर्ट में,
हाई कोर्ट में इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। आपको सुनेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वहां भी क्वेश्चन ऑफ लॉ ही लिया जाता है। हाई कोर्ट में भी फैक्चुअल एस्पेक्ट बहुत अब अगर ज्यादा आपको नहीं वक्त है। दिया जाएगा, आपको वक्त दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में वो चीज नहीं है जो मोस्टली वो तो आपके मुंह से निकला, वो भी पढ़ के आए हैं सब। 2 मिनट में अगर उनको केस नहीं समझ में आ रहा है तो आपका तो विकेट गिरना ही है, और आपको बोलने भी नहीं देंगे। वो कहेंगे थोड़ा सा जूनियर आया है, थोड़ा बहुत पूछ, लेकिन कितना टाइम है। आप देखिए कि 4 घंटा 240 मिनट में उन्हें 60 केसेस करने हैं, 4 मिनट ऑन एन एवरेज। जी, कैन यू इमेजिन? और उसके लिए वो 60 मिनट, वो जो 4 घंटे के लिए, बिलीव मी 6 घंटे सोते होंगे, 4 और 6 10, 2 घंटे इधर उधर, वो 10 घंटा पढ़ते भी हैं उन 60 केसेस के लिए। वो शाम को घर जाके क्या करते होंगे, 6-7 बजे से रात को पढ़ेंगे, फिर सुबह उठ के पढ़ेंगे। जब कोर्ट में आते हैं, मुझे तो एक मशीन है, ये तो झील है नेशनल सर्विस की, जो वो काम कर लेते हैं। चाहे हाई कोर्ट में भी यही है। हाई कोर्ट में भी जो बहुत सारे मेरे साथ के कुलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, जो वहाँ जजेस हैं, वो बताते हैं वो राउंड द क्लॉक काम करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि एडवोकेट क्यों नहीं कर सकता? अगर आप कह एडवोकेट, रहे हैं कि जजेस ज्यादा मेहनत करते हैं एडवोकेट से, फिलहाल डिस्पेंसेशन में ऐसे ही तो दिखता है। वो तो वही बात, स्ट्रेंथ की भी तो कमी है और केसेस का बर्डन ज्यादा है। इशू ये है कि हमारे पास तो 4 ही केस हैं। मेरे पास तो 4 केस हैं, और अगर मैं न्यू कमर हूं तो मैं 4 केसेस के बाद, अगर आप बहुत गौर से देखिए तो 4 केसेस का, मुझे 4 केसेस मिल गए, तो उससे पहले क्या था? 4 भी नहीं थे, तो मैं क्या कर सकता था? आप मुझे बताइए। जब 4 केसेस नहीं थे मेरे पास, मैं जो कर सकता था वही तो कर सकता हूं। तो मैं सिर्फ पढ़ सकता हूं और कुछ कर नहीं सकता। ओके, तो जब मैं पढ़ सकता हूं तो मैं वही नहीं करूंगा। जब केस आएंगे तब तो कैसे होगा? और मैं आपको बताऊं कि कोई भी ब्रीफलेस आदमी, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो कोई मुकदमा क्यों सबसे ज्यादा उसी को दिया जाता है जिस पे ज्यादा ब्रीफ हो? एक रेगुलर प्रैक्टिशनर को काम क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता कि इसके पास बहुत ज्यादा काम है और इसको इसलिए काम दे दो। क्योंकि रेगुलरिटी है। नो, इसलिए उसके पीछे एक बैकअप ये मान के दिया जाता है कि ये अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत अच्छे लॉयर हैं, ये अच्छे हैं, ये टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, इनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, ये बैकअप उनका दिखता है। तो जहां तक सवाल ये है कि आपको एक बात और बता दूं, पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे की, उसकी लाइब्रेरी की हर किताब गंदी मिलेगी। अगर हाथ ही नहीं लगेगा किताब को, तो किताब तो साफ ही दिखेगी, और वरना उस पर अंगूठे के निशान निकलेंगे हर किताब पे आपको। बहुत सरल चीज़ है, आपको बैरोमीटर डाल के देख लीजिए। एक पन्ना अगर लॉयर एक दिन पढ़ ले, एक पन्ना, मत पढ़िए ज़्यादा, आप देखिए 3-4 साल के बाद 5,000 पन्ने कानून के पढ़ा हुआ व्यक्ति, 1,500-2,000 पन्ने पढ़ा हुआ व्यक्ति, आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा। मैं तो एक ही पन्ना पढ़ने की बात कह रहा हूँ आपसे। लेकिन लाइब्रेरी तो देखने लायक रहती है, वकीलों की किताबों भरी हुई रहती है। मुझे नहीं तो भरी हुई रहती है, लेकिन मैंने क्या कहा, उन एक ही पन्ना तो पढ़ रहे हैं। आप तो जूनियर हैं, आपको तो वहां एक ही पन्ना पढ़ना है, कोई सी भी निकालिए और पढ़ लीजिए, एक पन्ना ही पढ़ लीजिए। जूनियर लॉयर्स जनरली इस चीज से भागते हैं। That's what I'm saying. मैंने कहा ना, Easy going. वो लॉ खुलेगा ही नहीं, लॉ की किताब ही नहीं मतलब लॉ की साइंस खुल ही नहीं पाएगी। जितना इस जुरिस्प्रूडेंस इस केस में डेवलप हुआ है इस देश में, वो जुरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे डेवलप हुआ है। जजेस ने ऐसा नहीं, फैक्चुअल में कोई कॉमन सेंस इज नॉट द लॉ, कॉमन सेंस इज नॉट द लॉ, और नॉट इज नॉट नेसेसरीली टू बी अ लॉ। और अगर आप कॉमन सेंस पे आप वकालत करना चाहते हैं, फेलियर डूम्ड बिल्कुल निश्चित है। यू आर डूम्ड, मतलब यू आर डेस्टाइन्ड टू बी डूम्ड, अगर आपने ये सोचा। मैंने आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि मैं तो नीचे से आया हूँ, मैंने हर लेवल पे देखा है स्टैंडर्ड। लॉयर्स के स्टैंडर्ड में इतना बढ़ गई, इस नंबर बहुत बढ़ गया है, लेकिन सब्सटेंशियल इश्यूज हैं, और वो इश्यूज जो हैं वो लॉयर्स को खुद ही सॉर्ट आउट करने। इंडिविजुअल लॉयर को, मेरे पास बहुत इंटर्न्स आते हैं, और जब वो मुझसे पूछते हैं कि सर, अब आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत जल्दी निपट जाएगी ये बात। मेरे पास 2 बच्चे आए, किसी स्कूल, IPL था यहाँ, एक IPL यूनिवर्सिटी है। उन्होंने मुझसे कहा, साहब हम
काम सीखना चाहते हैं और वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में रहे होंगे। अब वो एक सीनियर एडवोकेट से क्या काम सीखेंगे भाई? सीनियर एडवोकेट तो बहस करने वाला है, उसको तो पता भी नहीं एसएलपी कैसे फाइल होगी, हमें तो नहीं पता, देख के पता चल जाता है क्या है। लेकिन अगर आप मुझसे एसएलपी फाइल करने को कहें तो आई विल बी अटर फेलियर, क्योंकि मैं तो कभी व्यवहार रहा नहीं हूँ। रिट पिटीशन कैसे फाइल होगी मैं ड्राफ्ट कर सकता हूँ सब कुछ, लेकिन एसएलपी का फॉर्मेटिंग ये तो प्रोसीजर है। तो मैं उनको क्या बता दूं? वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत, वो आए तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के पास है जी। लेकिन वो सीखने आए ना कानून। तो मैंने क्या किया कि एक नजूल की एक किताब है हमारे यहाँ हिंदी में, नजूल लैंड्स हैं यूपी में, तो उसके नजूल किताब है, हिंदी की किताब है, और नजूल उसके अंदर गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं। देखिए जो एग्जीक्यूटिव जो काम करती है, जो कार्यपालिका जो ऑर्डर्स इशू करती है, गवर्नमेंट ऑर्डर, वो किसी ना किसी कानून को ध्यान में रख के और किसी कानून के हिसाब से करती है। तो मैंने एक पर्टिकुलर केस के 5 या 6 नजूल ऑर्डर्स रिलेवेंट थे, मैंने उन बच्चों को दे दिए कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, तुम इसे ट्रांसलेट कर लो, अब आप कुछ मत करिए। जब वो ट्रांसलेट करके ले आए, और बहुत अच्छी करके लाए, दो बच्चे, एक बच्ची थी, एक और लड़का था, दोनों ठीक करके लाए। फिर मैंने उनसे पूछा कि नजूल का कानून पूछोगे मुझसे? कैसा? हमें तो पता चल गया सब। बोले हमको सब समझ में आ गया सर, ये मुकदमा क्या है, इस मुकदमे में क्या गलती है और ये क्या चाहता है। कुछ नहीं, ब्रीफली स्टडी की। वो बच्चे नहीं, देखिए बेसिक चीज क्या है, वो कागज को पढ़ना, वो कागज, वो एसएलपी थोड़ी बना रहे हैं, वो कागज पढ़ रहे हैं, वो कागज जो सब्सटेंस है, वो प्रोसीजर थोड़ी है गवर्नमेंट, उसमें उसके अंदर कानून लिखा है। तो मैं आपसे वही वाली बात कह रहा हूँ कि जो सिचुएशन हुई है मैम, अगर आपने साइंस ऑफ लॉ नहीं समझा, सबस्ट्रेटम ऑफ लॉ नहीं समझा, बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है आज की डेट में। और मैंने कहा ना, ये जो अच्छे स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह से भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से भी आ रहे हैं। जैसे मैं एक गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है बॉम्बे का, बहुत अच्छा बच्चा था, वहाँ से आए थे मेरे पास। तो मैं वो कुछ पुणे में अच्छे स्कूल्स हैं, या ये गाजियाबाद वगैरह में, नोएडा वगैरह में भी अच्छे स्कूल से, स्कूल तो अब कंपटीशन हो गया है सब जगह, अच्छे बच्चे आ ही रहे हैं और बहुत कंसर्न रहते हैं बच्चे। तो उनके मन में आता है कि वो पढ़ते हैं प्रोजेक्ट, वो हमारे पास भी आते हैं, सीनियर एडवोकेट्स के पास जाते हैं, स्टूडेंट लॉयर्स के पास भी जाते हैं। वहाँ से वो पिकअप करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो लॉजिस्टिक्स हैं प्रोफेशन की, लॉजिस्टिक प्रोफेशन की जो है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कोर वैल्यू यही है, पढ़ना तो पड़ेगा जी। और ये इस प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा, पढ़ना तो सर हर प्रोफेशन में ही है। यू आर राइट। तो ये सब में है, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है। तो जहाँ तक सवाल ये है कि एसएलपी और रिट, यहाँ तो दो ही चीज़ें हैं, एसएलपी है, रिट है। सिविल अपील्स भी आती हैं एनवायरमेंटल लॉ की या एनजीटी वगैरह से, सिविल अपील्स भी आती हैं यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में भी वही सिचुएशन है, कोई भी प्रोसीजरल लॉ बहुत रिलेवेंट नहीं है। प्रोसीजर लॉ आपकी लॉजिस्टिक है कि आप कैसे अचीव करेंगे चीज़ को, लेकिन सब्सटेंशियल लॉ तो इतना ज़्यादा वेरीड हो गया, इतना हाईली टेक्निकल है। आप साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री है, उससे पूरा वर्ल्ड अक्रॉस जो कम्युनिकेशन और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जितना भी सब्जेक्ट है, ये इतना ज़्यादा आप, इतना वो लॉ इसमें बन गया है कि लोगों के लिए वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन लोगों को फोकस करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। और ऐसी सिचुएशन में बाकी तो ये है कि स्ट्रगल तो बहुत है मैम, और स्ट्रगल बहुत है, लेकिन फ्यूचर ठीक है। और क्योंकि इसको, इस प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, और कहीं भी आप मोहल्ले में भी लेवल पे अगर काम करना चाहें तो लॉ मिल जाएगा आपको काम करने के लिए, आपको मिल जाएगा। इसलिए जो नुक्कड़ पे जो आदमी है खड़ा हुआ, जो गांव में है एडवोकेट, उसको भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको कि अगर वो चाहे तो तहसील लेवल पे भी बहुत काम कर सकता है। पावर्स का इतना ज़्यादा एक्सरसाइज, एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज इतना पावर्स का है इस समय कि आप अपने राइट्स के लिए, वायलेशंस के लिए बहुत ज़रूरत है लोगों को जी। और यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उतनी ज़रूरत नहीं है।
जितनी नीचे है जरूरत। यहाँ क्वालिटी की जरूरत है, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए और नीचे क्वांटिटी ही ज्यादा आती है। और क्वालिटी भी चाहिए। लेकिन कोई अच्छे बच्चे जाना नहीं चाहते लोअर कोर्ट, हाँ, नहीं जाना चाहते, या तो हाई कोर्ट या तो सीधे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी नहीं जाना चाहते। उसका कारण क्या है कि उनको जो जिसको आप कहते हैं ग्लैमर कह सकते या उसको कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो बच्चे आते हैं सी एडवोकेट्स को गाउन में देखते हैं, किंग बिल्कुल। जो किंग कोर्ट लास्ट गोल तो एक्चुअली एक लिटिगेंट का वही होता है ना, एक लॉयर लिटिगेंट का होता है, लॉयर का नहीं होता। हाँ, नहीं, अगर लिटिगेंट का है मुझे नहीं पता, वो तो पता नहीं कहाँ रिलीफ मिल जाएगा, आएगा नहीं आएगा, लेकिन लॉयर का गोल सुप्रीम कोर्ट है, तो ये देश के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। क्या होना चाहिए फिर? उसको ये समझना चाहिए कि मैं कहाँ पर मैं काम पाऊंगा, कहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटीज है टू डेवलप एज ए लॉयर। ओके। लेकिन अगर उसको ये सोचना है कि सुप्रीम कोर्ट ही वो मोक्ष है, सुप्रीम कोर्ट आ गया तो मैं मोक्ष है, तो मोक्ष तो मृत्यु से प्राप्त होगा, तो मृत्यु ही हो जाएगी। अगर आप इसको लेगी तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि ये मैं डिसअपॉइंट नहीं करता हूँ। मैंने किसी बच्चे को प्रमोट नहीं किया कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आए। मेरा अपना लड़का, बहुत से ऐसे वकील है सर जो पहले कहते हैं कि आप एज पहले स्कूल में जाइए, मतलब आप लोअर कोर्ट्स में जाइए, वहां सीखिए, पहली चीज ड्राफ्टिंग सीखिए, बेसिक सीखिए, बिकॉज सीनियर के पास आप आओगे तो सीनियर विल एक्सपेक्ट कि आपको आना चाहिए पहले से काम। वही लोग फेल कर जाते हैं। ब्रीफिंग काउंसिल बिल्कुल जो है, जब उन्हीं को नहीं पता है कुछ तो ब्रीफ लेके होल्डिंग द ब्रीफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट रीडिंग द ब्रीफ एंड ब्रीफिंग द पर्सन, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जहां तक हम लोगों का सवाल है, अब बात है कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको भी बहुत पढ़ना ही पड़ता है। बिल्कुल। सीनियर एडवोकेट्स भी ऐसा थोड़ी है कि कोई डिवाइन विजडम है उनका, कोई डिवाइन विजडम नहीं है कि सीनियर एडवोकेट बनने के बाद डिवाइन विजडम आ गया है। प्रभु ने कोई ऐसा, वो तो टूल है पढ़ने का, लिखने का। दिन पर सीनियर एडवोकेट भी वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो क्या करते हैं, ये ब्रीफ पढ़ा हुआ है, ब्रीफ में ढूंढते रहते हैं। क्लाइंट का कंसर्न जितना बबलिंग, पेट की बबल्स होते हैं, जो जितना जूनियर को होते हैं उतने सीनियर को भी होते हैं, क्योंकि उसको अपनी स्टेक्स होती है, उसकी हाई स्टेक्स हैं, उसका अपना है। लेकिन सीनियर एडवोकेट बनना या ना बनना वो तो प्रभु की एक जर्नी है, आप जब जहाँ बनेंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी हालत में, अगर आप एक अच्छे अधिवक्ता पहले बनेंगे ना जी, आप तो अधिवक्ता पहले बनिए। और दूसरी बात, सीनियर एडवोकेट तो आप बार की नज़रों में बनिए पहले। जो आपको जो एडवोकेट इन जनरल है वो सीनियर आपको मानता है, तभी तो आप सीनियर। वो कब मानेगा आपको? जब भी तो मानेगा जब वो आपकी वर्थ को समझेगा कि आप एक बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, एक अच्छे अधिवक्ता है, आपको अपना ब्रीफ हैंडओवर किया जा सकता है। तो इसीलिए ये जर्नी है। और जहाँ तक ये है कि न्यू कमर्स के लिए यही कहूँगा मैं, क्योंकि और जहाँ तक फर्स्ट ईयर से जो बच्चे आते हैं लॉ में, जर्नी वहाँ से शुरू होनी चाहिए। ये नहीं कि लॉ करने के बाद शुरू करेंगे। बिल्कुल सही बात का। वहाँ पर वो 5 साल जो हैं बहुत ज़रूरी है। होता है। मैंने आपको बताया ना कि ये 5 साल की जो वो है रिगरस एक्सरसाइज, बीए अब तो इंटरमीडिएट के बाद ही करता है। बिल्कुल हमारे पास हम तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज ही है। इंटीग्रेटेड नहीं, बीए अब तो शायद 3rd ईयर के बाद लैटरल एग्जिट भी है, जिनको ग्रेजुएशन बी लॉ मिल जाता है, बीएल लॉ। तो जहाँ तक सवाल ये है कि अगर आप ये 5 साल, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत, सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी कभी ये बात सोची कि हम 5 साल से पहले, 5 साल के एक्सपीरियंस, एक बीच में क्वेश्चन आया कि 5 साल पहले आदमी कहीं काम करके आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसको एंट्री मिलेगी। बिल्कुल आर्गू करना या तो 5 साल का एक थ्रेशोल्ड कहीं ना कहीं सही भी है एक तरीके से। देखिए अब ये तो बहुत, ये फैक्टर बड़ा सब्जेक्टिव है, आई टेल यू। तो एक तरीके से तजुर्बा भी तो मैटर करता है। इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत है। ओके, इसमें सब्जेक्टिविटी ये है कि हम सोचते हैं बात ये होना चाहिए, दूसरा आदमी सोचेगा। ये बताइए कि जो लॉ 5 साल करके आया है, वो अगर, मेरी बात का जवाब दीजिए कि अगर 5 साल उसने बहुत अच्छा लॉ पढ़ लिया है, तो मुझे ये बताइए कि वो पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट आएगा और वो AOR का एग्जाम 1 साल 5 साल, अब तो AOR भी 5 साल के बाद ही मिलता है जी। तो 5 साल के बाद मिलता है, तो 5 साल तो वो कर ही रहा है ट्रेनिंग। तो जहां तक सवाल ये है कि अगर आप सोचते हैं शुरू में आएगा तो कब आएगा, 5 साल पहले बाहर रह के आए, फिर 5 साल यहाँ करे, फिर 10 साल या 5, वो जरूरी नहीं है आप 5 साल यहीं करें, 5 साल कहीं और करके आए और यहाँ 1 साल इंटर्न करें किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ, उसके बाद एग्जाम दे के यहाँ करना चाहे, तो हुए तो 5 साल बाहर ही। तो वो जो 5 साल बाहर होके आ रहा है वो 5 साल घूम के ना है,
क्योंकि एक साल में कुछ नहीं पैदा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में काम जी। करने के बाद। वो 5 साल जो उसके अपने हैं, जिसमें वो काम कर रहा है, जिसमें स्टूडियस है, वो अपनी वर्क, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसका एओआर के एग्जाम में आएगा। ये तो सपोज किया जाता है कि एओआर्स जो हैं वो एओआर बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस हुए हैं जो लोग एओआर में अपीयर भी नहीं हुए और डायरेक्ट आर्गुइंग काउंसिल हो गए। 5 साल से एओआर भी नहीं बने, आर्गुइंग काउंसिल हो गए और आर्गू करना शुरू कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं है कि एओआर अगर खुद आर्गू नहीं कर रहा है तो सीनियर एडवोकेट ही उसको करना है। ब्रीफिंग काउंसिल बहुत है, ओके, वो ब्रीफ ऑन मतलब ब्रीफ आउट करके और वो लोग डायरेक्ट आर्गू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए कर भी रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जिनके कैरियर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में एओआर एक ऐसा थ्रेशोल्ड है जिसके बाद कुछ है ही नहीं। जी, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे मैं ही हूँ, मैं तो कभी एओआर रहा नहीं, मैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही आ आपकी गया। तो जर्नी जिगजैग है सर, आपने तो इतना एक्सपीरियंस लेकर हाँ, वैसे वो पूछे हैं। वो बहुत लोग नहीं करते हैं, वो हाँ, रिस्क जी, नहीं जी। ले पाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इश्यू तो वही है कि पढ़ना तो वही तो है, अपनी मृत्यु ही पे सर्ग जाएंगे, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो मेरे पास और कुछ है नहीं। तो चलिए सर, मुझे लगता है डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहा एंड जो भी अपकमिंग लॉयर्स है उनको तो इस चीज से सीखने को बहुत मिलेगा। सो ये अच्छा है कि लॉयर्स को सीखे, अच्छा है। बिल्कुल। हमारे पास तो जो कुछ भी है वो अपना एक छोटा सा अनुभव है, एक वैल्यू एडिशन है उनके करने के लिए। और बाकी तो नई जनरेशन इतना ज़्यादा है, उसके पास इनपुट्स और इन्फॉर्मेशंस हैं। मैं आपको बताऊं, वो जनरेशन हमसे वाइजर ही है। और जब वो वाइजर जनरेशन है हमसे, आप भी उसी जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो उसका एक जिसको कहते हैं ना फोकस्ड, उतना ही ज़रूरत है और बाकी है नहीं। अब तो इंटरनेट की दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है। जी, क्लाइंट भी कभी कभी जजमेंट लेके चलता है अपनी फाइल में गूगल से निकाल के। तो आप समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप गूगल से निकाल सकते हैं और एआई से निकाल सकते हैं, वो तो क्लाइंट के हाथ में है। तो उसको कौन सी चीज़ आप दे देंगे जिससे आपको ऐसा लगे कि वो आप में कॉन्फिडेंस करे? वरना तो वो गाइड करेगा आपको बिल्कुल। कि मेरे केस में ये कर दीजिए, विच यू विल नॉट लाइक। तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन के इस युग में आपको इनोवेशन करने पड़ेंगे, अपने टूल्स को शार्पन करना पड़ेगा। और वो टूल शार्पन जब ही होंगे जब आप उतनी तो जितनी वो बता रहा है क्लाइंट, वो सब तो आपको पता ही होना चाहिए। और वो पता तो जब ही होगा ना, उसकी तो प्रॉब्लम तैयार करके आया है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं, काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं इस प्रोफेशन में। और लेकिन मुझे उन लोगों के लिए कहना है कि जिन लोगों को यहाँ लगे कि यहाँ जो ग्राउंड रियलिटीज अगर उसको देखनी है, तो गो बैक टू द बेसिक्स इज द लोअर कोर्ट ओनली, इज द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। बेसिक तो वहाँ से अगर उसको लगता है कि टू शार्पन योर स्किल, यहाँ आइए, 5-10 साल के बाद आइए। यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ पे स्पेस भी है, आपको सब कुछ मिलेगा। और आपने 5-7 साल आपको फीड कोर्ट मिलेंगी। अगर आप यहाँ डायरेक्ट आ गए, आपको काम कहाँ से मिलेगा? लेकिन अगर आपने वहाँ अच्छा काम किया है तो आपको यहाँ काम ऑटोमेटिकली मिलेगा। मिल जाएगा। मेरी फीड कोर्ट नैनीताल है, उत्तराखंड हाई कोर्ट से मेरे पास काम आता है, बरली से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है। तो वो कहाँ से आता है? मैं वहीं से आया हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, बैठा हूँ, वो मुझे जानते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ तो यहीं पर अखबार में नहीं आए तो गए। यू आर डेस्टाइन्ड टू लूज योर आइडेंटिटी इन द डिन ऑफ द डिन अराउंड यू। इतना शोरगुल है, उसमें खो जाएंगे आप। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच।